is definitely a biology class because this class is in the open. And you are class 9 students, right? Now the fact is this, that you all are standing very, like disciplined. Stand, relax. Don't need to stand in a such, what term should I use? As if somebody has torn you, tied you and has kept. No, stand, relax and listen to me. The story of life. I began the story of life. Today I'll talk about cell. And when I start talking about cell, the first thing that comes in my mind is that the cell is referred as the fundamental unit of life. When they say the fundamental unit of life or the basic unit of life, they try to mean the structural and functional unit of life. Now, I like to ask the question to these people who say that cell is structural and functional unit of life, that why do you call it structural unit of life, same separately? Why do you call it functional unit of life? Please say it separately. Why is cell fundamental unit of life? Cell is fundamental unit of life. The reason behind that is because cell is the structural and functional unit of life. Right? You can come closer and take me now. You can stand. The cell is the structural and functional unit of life, and that's the reason they call it the fundamental unit of life. Right? But I like to ask the question, why structural unit? Now, to answer this question, that why is cell called the structural unit of life, is very easy. Because every organism's body is made up of cell. We, from very beginning, from class 6 or class 7, learn that cell मिलके टिश्यू होता है, टिश्यू मिलके ऑर्गन होता है, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम होता है, ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म होता है. तो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं जो मिलके बहुत सारे टिश्यूज बनाए हैं, जो मिलके बहुत सारे ऑर्गन्स और ऑर्गन्स मिलके बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स बनाए हैं. तो द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक इज सेल. तो उसको स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कह सकते हैं. लेकिन फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है, यह समझने के लिए you have to understand much more bigger biology, much more greater biology. And what kind of biology that would be? Would you like to sit down? Sit down. So, to understand that why it is cell is functional unit, you need to understand that what is life. If you can understand what life is, you will understand why I am calling cell the functional unit of life. What life is? Life is a combination of life processes. What life processes, sir? Nutrition, respiration, excretion and reproduction. Nutrition is taking nutrients in. Respiration is breaking that nutrient to create energy. Excretion is the chemical reactions that are going on to create energy. For those chemical reactions, some extra byproducts are formed which are harmful for the cell or the body, should be thrown out. That process is known as excretion. And reproduction is the ultimate process. The energy that is harnessed is used to reproduce or for continuity of life. These four basic mechanisms are followed by a single unicellular bacteria
to a most complex multicellular human being. I agree that in much more higher organisms, you will be able to find much more complex life processes like control and coordination. Like I am talking, you are listening. This is also a life process. I am moving around, locomotion. Moving around means move. This, if I move my hands, this is moving. If I displace myself, that is locomotion. Movement and locomotion, this is also life process. I can hear you, I can see you. I will not dance in this class but will teach. That is a control of my brain that I have. Okay, if I see a very beautiful girl of my, very beautiful woman walking around, then my heart will beat faster. Some hormones will be released. Right or wrong? See, everybody is smiling. Good. Your heart also beats faster? Like that? Oh, he's saying yes. So that is also life process, release of hormones. Now, instead of seeing a beautiful woman walking around, if I see a tiger has come, then also hormones will be released in my body. And that also is life process, my dear friends. Are you getting my point? So I am not saying that there are just 4 life processes. That is nutrition, respiration, excretion and reproduction. There is much more higher complex life processes existing in complex organisms. But the 4 basic life processes are respiration, nutrition, excretion and reproduction I just talked about. This is done by everyone. From a unicellular bacteria which is only one cell and lives as one cell, to the most complex multicellular organism does these 4 life processes. And these life processes does define life. Am I being able to make myself clear? Is this clear to you? Now, these life processes are what but nothing chemical reactions that occurs inside the cell. The cell is made up of what? Cell makes tissue. Tissues makes organs. Organs makes organ systems and organ systems makes organism. Here when I am talking about this, I am talking about organisms like me, like a lion, like a snake, like a dog, large organisms. Am I talking about small unicellular organisms? Am I talking about organisms like algae or fungi? Am I talking about organisms like mosses? No. But aren't they alive? They are also alive. Aren't they doing life processes? Yes, they are also doing life processes. So, the basic thing is that all these life processes are chemical reactions. And the cell itself is also made up of chemicals. We do cell, tissue, organ. But we never do atoms, molecules, cell. Means we learn this chart. No, cell से बनता है टिश्यू से बनता है organ से बनता है organ system से बनता है organism. इससे इस साइड में और उस साइड में कभी जाते ही नहीं हम लोगों को यह पता होना चाहिए कि इससे बहुत सारे एटम्स होते हैं जो मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और वही मॉलिक्यूल्स मिलके सेल बनाते हैं. सर कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल सेल बना देगा? नो, कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल सेल नहीं बना देगा. हम लोग बोलते हैं कार्बन बेस्ड लाइफ. क्या बोलते हैं? कार्बन बेस्ड लाइफ. इसका मतलब ये है कि कार्बन एटम बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बना सकता है. सर सिर्फ कार्बन एटम नहीं, 6 जन: कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, हाइड्रोजन. क्या बोला मैंने? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, हाइड्रोजन. ये सारे एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जिन मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स, फैटी एसिड्स एंड ऑल्सो डीएनए एंड आरएनए. सेल का मेम्ब्रेन देखो, लिपिड से बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है. सेल वॉल देख लो, जिनके पास है. सबके पास सेल वॉल नहीं होता. ह्यूमंस के पास सेल वॉल होता है? नहीं. एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होता. प्लांट्स के पास होता है, फंजाई के पास होता है, बैक्टीरिया के पास होता है सेल वॉल.
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस अंडरस्टूड? तो सेल वॉल को देख लो, सेल वॉल किससे बना हुआ है? कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है। कहीं पे भी उठा के देखो कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है, थोड़ा प्रोटीन। साइटोप्लाज्म वाटर से बना हुआ है। साइटोप्लाज्म के अंदर जो है डीएनए, आरएनए या न्यूक्लियस या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्गी अपैरेटस या राइबोसोम, सर ये सब क्या बता रहे हो? ये सब का नाम तुम लोग स्कूल में ऑलरेडी सुन चुके हो, अगर तुम लोग 9th में हो या 10th में हो, राइट और रॉन्ग? ये सारी चीजें सेल ऑर्गेनेलिज है जो सेल के अंदर होती है। ये किससे बनी हुई है? प्रोटीन से बनी हुई है, लिपिड से बनी हुई है। ये सेल ऑर्गेनेलिज है। सेल ऑर्गेनेलिज अलग लेवल ऑफ स्टडी है, उसमें आएंगे। सबसे पहले सेल के बारे में बात करते हैं। जो सेल है वो केमिकल से ही बना हुआ है। ये सारे केमिकल से बने हुए हैं। ऑल दिस केमिकल्स, व्हिच केमिकल्स? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स एंड डीएनए एंड आरएनए। And carbohydrates, proteins, lipids, fats and DNA and RNA are in turn made up of atoms like carbon, hydrogen, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड ऑक्सीजन। ये है, राइट और रॉन्ग? और वो लोग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। सर इन स्ट्रक्चर्स के बारे में कब सीखेंगे? सीखेंगे क्लास 11 में। बायोलॉजी लोगे क्लास 11 में तो मिलेगा थोड़ा बहुत, और आगे पढ़ोगे तो पूरे एकदम डिटेल पता चलेगा कि कौन से ऑर्गेनिज्म में कैसा स्ट्रक्चर का कैसा क्या रहता है। लेकिन आई होप इस लेवल पे इतना तो क्लियर हो गया कि एटम एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनता है, और ये सारे स्पेशल मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स, डीएनए, आरएनए मिलकर सेल बनाया है। ये जो सेल है, ये सेल यूनिसेलुलर, एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकता है, यस और नो? बैक्टीरिया में हम ये एग्जांपल पाते हैं। इन बैक्टीरिया वी कैन सी दैट एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दे कैन सर्वाइव, एंड दे वर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू फॉर्म एक्चुअली when life did form on earth. When life did form on earth, अर्थ पे जब लाइफ पहली बार बनी थी तो क्या बनी थी? बैक्टीरिया सबसे पहले बनी थी। उनको आर्की बैक्टीरिया कहा जाता था, ठीक है? आर्की बैक्टीरिया मतलब जो एक्सट्रीम टेम्परेचर सह सके, ऐसे वाले बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के बाद आया यू बैक्टीरिया, मतलब नए बैक्टीरिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ये नाम सीखो, ये नाम सीखना इंपॉर्टेंट है। आर्की बैक्टीरिया, ARCHAE, आर्की बैक्टीरिया। ये क्या है? बैक्टीरिया का भी बाप, मतलब बैक्टीरिया का भी पुराना बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया से चेंज होके हुआ यू बैक्टीरिया। चेंज मतलब एवॉल्व हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर्की बैक्टीरिया से चेंज होके या एवॉल्व होके बना यू बैक्टीरिया, जिसको नॉर्मल जो बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस या फिर बैसिलस, ये सब बैक्टीरिया के बारे में क्लास 8 में पढ़े हो ना, कि दूध को दही बना देता है, ये बैक्टीरिया पिंपल्स बनाता है, जो प्रोपाइनी बैक्टीरिया, ये सब पढ़े हो ना। ये सब बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया है। लेकिन बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया को कहा जाता है कलेक्टिवली मोनेरा। क्या कहा जाता है? मोनेरा, कलेक्टिवली। पॉज करो। बैक्टीरिया को कलेक्टिवली कहा जाता है मोनेरा। ये मोनेरा कैसा होता है? मोनेरा में आर्की बैक्टीरिया भी होगा, यू बैक्टीरिया भी होगा। सर अब ठीक से बताया नहीं, आर्की बैक्टीरिया, अरे आर्की बैक्टीरिया प्रिमिटिव बैक्टीरिया है सर, आज नहीं मिलता। हाँ मिलता है। अच्छा, सबसे पहले जब अर्थ में लाइफ फॉर्मेशन हुआ होगा तो अर्थ का कंडीशन कैसा रहा होगा? एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम रहा होगा। तो एक्सट्रीम टेम्परेचर में बैक्टीरिया रहता है, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया है। एक्सट्रीम प्रेशर में बैक्टीरिया रहता है, बैरोफिलिक बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया है। एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम विंटर्स यानी आइस में बैक्टीरिया रह सकता है, साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया। एसिड में बैक्टीरिया रह सकता है, मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट में एसिडोफिलिक बैक्टीरिया। तुम रह सकोगे एसिड में? तुमको एसिड में फेंक देंगे, मर जाओगे जल के, है ना? एसिडोफिलिक बैक्टीरिया, अपना सेल, उसका सेल एसिड में ही काम करता है। तो ये सब एक्सट्रीम कंडीशंस जब दुनिया में थी, आज से करोड़ करोड़ साल पहले जब लाइफ फॉर्म हो रहा था, तो आर्की बैक्टीरिया फॉर्म हुआ। उसके बाद जब लाइफ और सस्टेनेबल बनने का कोशिश किया, मतलब टेम्परेचर, फिर पीएच वगैरह, एनवायरनमेंट जब और अच्छा होने लगा, तब यू बैक्टीरिया फॉर्म हुआ। यू बैक्टीरिया का स्पेलिंग है EU बैक्टीरिया। ये आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया दोनों मिला के हम लोग बोलते हैं मोनेरा। आज भी ये लोग जिंदा हैं, हम लोग बैक्टीरिया मिलते हैं, बैक्टीरिया से मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? हाँ, बैक्टीरिया के साथ मूवी डेट पे जाते हैं कि नहीं?
जरूर जाते हो। किसी के साथ भी मूवी डेट पे चले जाओ, तुम दोनों अकेले नहीं जा रहे हो, याद रखना पेट में बैक्टीरिया तो जा रहा है ना, इकोलाई है तुम्हारे पेट में। साक्षी हंस रही है, मूवी डेट है शायद आसपास सामने पे। तेरे साथ है क्या पंजन? मतलब तू बोलना चाहता है, मेरा उतना लेवल नहीं है। रुको फोन आया। दिस मोनेरा और आर्कीबैक्टीरिया, दिस मोनेरा or the collection of archaebacteria and eubacteria both together are also called prokaryotes. Sir, what is the meaning of prokaryotes? Pro means primitive, karyon means nucleus. Are you getting my point? Primitive nucleus मतलब सर सुन मेरी बात, ये चीज समझने के लिए एक चीज समझना इंपॉर्टेंट है। क्या है चीज? ज्यादा दूर मत जा, वॉइस नहीं आएगा शायद। एनीवे, ये चीज समझने के लिए एक चीज समझना इंपॉर्टेंट है। यहाँ आ जा, खड़ा होके यही से कर ले। अगर हलन दे दर चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि कैरेक्टर्स जो होते हैं, चाहे वो बहुत बड़ा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बन क्यों ना जाए, चाहे वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्यों ना बने, कैरेक्टर्स जो है, कैरेक्टर्स सर, कैरेक्टर्स मतलब जैसे देवांजन का स्किन कलर, या फिर कोई जेनेटिक डिजीज, या फिर हाइट, या फिर ब्लड ग्रुप, या फिर कोई बैक्टीरिया दूध में ग्रो कर सकता है, कोई बैक्टीरिया तुम्हारे पस में ग्रो कर सकता है, तुम्हारे बॉडी में ग्रो कर सकता है। बैक्टीरिया के भी कैरेक्टर्स होते हैं, स्नेक्स के भी कैरेक्टर्स होते हैं, लायंस के भी कैरेक्टर्स होते हैं, स्पाइडर्स के भी कैरेक्टर्स होते हैं, अर्थवर्म का भी कैरेक्टर होता है, और दुनिया में जितने भी वैरायटी ऑफ फिशेस, एम्फीबियंस, बर्ड्स, सबका कैरेक्टर होता है, सब एक दूसरे से अलग होते हैं। राइट और रॉन्ग? ये कैरेक्टर्स जो हमें दिखते हैं इसको कहते हैं फेनोटाइप। क्या कहते हैं? फेनोटाइप, जो दिखते हैं। एनीवे, सब कैरेक्टर्स होते हैं। ये जो कैरेक्टर्स है, पता है ये कैरेक्टर्स कहाँ से कोड होता है? ये कैरेक्टर्स कोड होता है जीन्स से, GENES, जीन्स। कौन से चीज से कोड होता है? जीन्स, GENES। सर ये जीन्स रहता कहाँ पे है? डीएनए के अंदर। सिर्फ डीएनए सब में होता है? हाँ, चाहे वो आर्कीबैक्टीरिया हो या बैक्टीरिया हो, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, टू द मोस्ट हाईएस्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, उसमें डीएनए रहेगा। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के हर एक सेल में डीएनए रहेगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एक सेल में डीएनए रहेगा। लेकिन डीएनए रहेगा मेरे भाई, और डीएनए के अंदर जीन्स रहेगा, और जीन्स कैरेक्टर कोड करेगा। सर जीन्स कैसे कैरेक्टर कोड करता है? एक्चुअली जीन में ना, जैसे कंप्यूटर में सीक्वेंस होता है ना, 01 011 01 011, अगर मैं कंप्यूटर को बताऊंगा तो कंप्यूटर कुछ समझेगा, अगर मैं बताऊंगा 0110110101 तो कुछ दूसरा कुछ समझेगा। ये बाइनरी लैंग्वेज है। ठीक उसी तरह डीएनए में भी ऐसा कोड चलता है, ATGC। क्या क्या बोला मैंने? ATGC, एडेनाइन, गुएनाइन, साइटोसिन, थायामीन। एडेनाइन स्पेलिंग ADENINE, गुएनाइन GUANINE, साइटोसिन CYTOSINE, थायामीन स्पेलिंग THYAMINE। सिंबलाइज किया जाता है ATGC, ब्रैकेट में लिख लो। ये ATGC पूरे डीएनए में, जैसे कंप्यूटर में 0101, पूरे डीएनए में ATGC CT GGC AT ऐसे करके रहता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और उसमें से, उस कोड में से प्रोटीन निकल के आता है, जो प्रोटीन कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। सर प्रोटीन कैरेक्टर को कंट्रोल करता है? हाँ, तुम्हारे सेल में या किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उसके हिसाब से उसका कैरेक्टर है। जैसे एक बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस लैक्टिस दूध में ग्रो कर सकता है, तुम्हें इन्फेक्ट नहीं कर सकता। एक बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस तुम्हारे घाव में इन्फेक्ट कर सकता है, दूध में नहीं ग्रो कर सकता, या दूध को दही नहीं बना सकता। सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ देयर कैरेक्टर इन बैक्टीरियल लेवल, इन यूनिसेलुलर लेवल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो उसके डीएनए के सीक्वेंस में चेंज रहेगा, उसके एंजाइम्स अलग पैदा होंगे, वो अलग वे में न्यूट्रिशन करेंगे, और इसीलिए उन लोगों का कैरेक्टर भी अलग होगा।
सर चलो ये तो बैक्टीरिया का बात बताया, हायर ऑर्गेनिज्म में भी ऐसे ही डिफरेंस होता है? यस, हायर ऑर्गेनिज्म में भी ऐसा डिफरेंस है। मैं और सुकन्या क्यों अलग है? सबसे पहली बात तो सुकन्या के पास हमारा डीएनए तो क्रोमोसोम बन के रहता है, ये सारी चीजें सीखेंगे। सुकन्या लड़की है इसीलिए इसके पास XX क्रोमोसोम है, मैं लड़का हूं इसके लिए मेरे पास XY क्रोमोसोम है, ये भी एक जेनेटिक डिफरेंस है। ये सारी चीजें पढ़ेंगे। सर ये सीक्वेंस में भी डिफरेंस होता है, चलो दो लड़की में तुम्हारे सीक्वेंस में डिफरेंस है, हाँ डिफरेंस है। तुम्हारे सीक्वेंस में और मेरे सीक्वेंस में डिफरेंस है, हाँ है। सर हमारे हर एक सेल में डीएनए जो है उस डीएनए के सीक्वेंस में डिफरेंस है? नहीं, वो नहीं है। मेरे बॉडी के अंदर अगर 5,02,385,000 सेल्स है तो हर एक सेल के अंदर जो डीएनए है वही डीएनए, और ये हर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ट्रूथ है। इतना समझ में आया? इंफॉर्मेशन दिमाग में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है? इज दिस क्लियर टू यू? हाँ, ये अलग बात है कि तुम्हारा सेल और मेरे सेल के डीएनए में डिफरेंस होगा। सर हमारे सेल और एक लायन के सेल के डिफरेंस में डीएनए में डिफरेंस होगा? हाँ, ज्यादा डिफरेंस होगा। मतलब मुझ में और तुम में जितना डिफरेंस है, मुझ में और एक लायन में या तुम में और लायन में ज्यादा डिफरेंस होगा, क्योंकि वो अलग स्पेसीज है। एक बैक्टीरिया का डीएनए और एक बैक्टीरिया का डीएनए दो अलग अलग बैक्टीरिया है, दोनों में कैरेक्टर डिफरेंस है, उनमें सिमिलरिटी मिलेगा, लेकिन क्या वो मेरे साथ सिमिलरिटी मिलेगा? मैं क्या दूध को दही बनाता हूँ क्या? दूध का इतना बड़ा बोरी डाल के मेरे को डाल देगा, वो दही बन जाएगा? नहीं ना बनेगा, मैं बैक्टीरिया नहीं बन सकता। तो उस हिसाब से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए में डिफरेंस रहता है, और सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में भी कैरेक्टर का डिफरेंस रहने की वजह से डीएनए में डिफरेंस रहता है। लेकिन अगर वो एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो हर एक सेल में सेम डीएनए रहता है और सीक्वेंस सेम रहता है, और डीएनए से कोड होता है क्या? प्रोटीन। और वो प्रोटीन क्या करता है? तुम्हारे केमिकल रिएक्शंस को करवाता है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, जो भी ले लो, रिप्रोडक्शन, ये सारे लाइफ प्रोसेसेस तो है, केमिकल रिएक्शंस है, इनको करवाते हैं और इनमें डिफरेंस क्रिएट करवाता है। और ये सब हो रहा है कहां पे? अगर तुम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो तो एक सेल में हो रहा है, और अगर तुम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो सोच लो रेस्पिरेशन। एक बैक्टीरियल सेल रेस्पिरेशन करता है अपने सेल के अंदर, एक सेल के अंदर। तुम रेस्पिरेशन करते हो लंग्स के हेल्प से, ऑक्सीजन में ब्लड में ऑक्सीजन मिला के उसको मसल्स में भेज के थ्रू द वेन्स, मतलब पूरा एक सिस्टम यूज करते हो। लेकिन बात तो वही है ना, फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाते हो, राइट? तो तुम कॉम्प्लेक्स बन चुके हो। तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम is made up of lots of respiratory organs, and those organs with lots of tissues, and those tissues with lot of cells. But down at the level of the cells, what is happening? Those same thing is happening what in the bacterial cell is happening, breaking down of food. Yes or no? Maybe it is happening in a complex manner. Some cells are doing some specialized work, some are absorbing oxygen, some are mixing oxygen, some are forming the lungs, some are forming the veins, some are taking the blood through the oxygen, and in the muscles it is breaking down. तो तुम एज अ ऑर्गेनिज्म एज अ होल रेस्पिरेशन कर रहे हो, बैक्टीरिया एज अ होल रेस्पिरेशन उसी एक सेल में कर रहा है। बैक्टीरिया के सेल के अंदर भी डीएनए है, उसके एंजाइम्स काम कर रहे हैं। तुम्हारे सेल के अंदर भी डीएनए है और उसके एंजाइम्स यानी प्रोटीन्स काम कर रहे हैं और तुम्हारे सेल को बना रहे हैं। तो हुआ कि नहीं? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ? व्हाई सेल इज कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? सेल is called the structural unit because cells makes the entire body. Cell is called the functional unit because the basic functions occur at the cellular level. Together many cells, if they have to do a large amount of work, right, then it is tissue. Together many tissues has to do another large amount of work, then it is organ. Together many organs are trying to do one type of life process, that is organ system. जैसे न्यूट्रिशन, एक बैक्टीरिया भात में ग्रो करेगा, भात पचा देगा, राइट और रॉन्ग? पचा देगा मतलब स्पॉइल कर देगा। तो वो क्या कर रहा है? भात के न्यूट्रिशन को अपने अंदर ले रहा है। एक बैक्टीरियल सेल में माइक्रोस्कोपिक लेवल में न्यूट्रिशन अंदर घुस रहा है उसका डिफ्यूजन से, बाय द मेथड ऑफ डिफ्यूजन। तुम क्या कर रहे हो? भात को ऐसे जाया, स्टोमक में गया, इंटेस्टाइन में गया, वहां से ब्लड से एक
एब्जॉर्ब हुआ, मसल में गया, मसल में ग्लूकोज यूटिलाइज हुआ, फिर सांस लिया और ऑक्सीजन से ब्रेक डाउन किया। तुमने भी न्यूट्रिशन किया, उसने भी न्यूट्रिशन किया, उसने एज ए यूनिसेलुलर न्यूट्रिशन किया, तुमने एज ए मल्टीसेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन किया। क्या फर्क पड़ता है? कर तो रहे हो न्यूट्रिशन ही ना। तुम भी जिंदा हो, लाइफ प्रोसेस तुम भी कर रहे हो, वो भी जिंदा है, लाइफ प्रोसेस वो भी कर रहा है, बट इट इज डूइंग एज अ सिंगल सेल। And in your body also, if all the cells are singularly not working, your system will not work. Yes or no? Now you understood why cell is known as the functional unit of life, and you understood why cell is called the structural unit of life. Is this clear to you? Is this absolutely clear? Absolutely understood? Is there any problem? Huh? You have question? Okay, focus on him. How do cells combine and forms? Yeah. Very good question. First time in life, Devanjan has asked a good question. Give him a big hand. How do I can tell you, but you will not understand. This is a higher molecular mechanism. But why do I can tell you? You will always notice that unicellular organism also tend to remain in colonies. एक साथ रहना पसंद करते हैं। मैं माइक्रोबायोलॉजी का हूँ। जब मैं माइक्रोबायोलॉजी प्रैक्टिकल करता था तब बैक्टीरिया, तुमको थोड़ी लगता है कि मैं एक बैक्टीरिया मिलता था मेरे को, कभी नहीं। एक बैक्टीरियल कॉलोनी मिलता था, छोटा सा पिंपल जैसा, वहां पे करोड़ बैक्टीरिया होते थे। तो दे टेंड टू रिमेन इन कॉलोनीज, staying multicellularly, or this question could be asked in this way: life when it formed, it was unicellular, then why life tended to become multicellular and even become more complex? यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहले बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया फॉर्म हुआ था, उसके बाद यू बैक्टीरिया फॉर्म हुआ था। ये लोग प्रोकारियोटिक है। तब मैं प्रोकारियोटिक का मतलब बताने गया था, और डीएनए में जीन्स रहता है, ये रहता है, वो रहता है, बहुत कुछ बोल दिया। अब बोलता हूं, डीएनए अगर प्रोटेक्टेड नहीं रहा, इफ इट रिमेन्स नेकेड इन द साइटोप्लाज्म, वी कॉल इट प्रोकारियोटिक। समझ में आया? इफ द डीएनए इज नॉट प्रोटेक्टेड, रिमेन्स नेकेड इन द साइटोप्लाज्म, वी कॉल इट व्हाट? प्रोकारियोटिक। इज दिस क्लियर टू यू? इज दिस अंडरस्टूड? हाँ? But these prokaryotic organisms slowly through the environmental changes back in time changed and covered their DNA with nuclear membrane and formed a nucleus, and DNA after that remained inside the nucleus. This type of organisms are called eukaryotic organisms. New nucleus. U means new. Got my point? So you understood what is prokaryotic, what is eukaryotic? Is this clear to you? जब प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिज्म था, जिसको हम लोग मोनेरा कह रहे थे, तब वो लोग अपना फूड चेन बना लिया था, क्योंकि कोई फोटोसिंथेसिस कर सकता था। सर बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर लेता था? हाँ, बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आज भी एग्जिस्टेड करता है। बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर लेता था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। उनके पास एक क्रोमाटोफोर बोल के स्ट्रक्चर था, उसके पास क्रोमाटोफोर के अंदर, क्रोमाटोफोर बोल रहा हूँ, उसको मेसोसोम कहते हैं। तो हाँ, मेसोसोम बोल के एक स्ट्रक्चर था। ठीक है, देखो मैं बहुत कम बायोलॉजी जानता हूँ, इसीलिए इतना ज़्यादा टाइम निकल रहा है। ठीक है, इतना कम बायोलॉजी जानता हूँ ना कि तुम लोग पढ़ रहे हो मेरे पास, थैंक यू। समझ रहे हो ना? बैक्टीरिया के पास एक स्ट्रक्चर रहता है मेसोसोम बोल के, उस मेसोसोम के अंदर क्लोरोफिल जैसा स्ट्रक्चर रहता है। उस तरह से फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर लेता था, और हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया उस फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से फूड ऑब्टेन कर लेता था। अपना फूड चेन बना के मस्त था, सोसाइटी बना लिया था, बैक्टीरियल सोसाइटी, प्रिमिटिव बैक इन टाइम। आज भी वो सोसाइटी एग्जिस्ट करता है। किसी भी इकोसिस्टम में जाओ, यहाँ पे मेरे को याद आता है, और एक चीज बताना चाहिए था मेरे को, वो मैं बाद में बताता हूँ। किसी भी इकोसिस्टम में जाओ या किसी भी हैबिटेट में जाओ, मैं बताता हूँ, मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? माइक्रोबायोलॉजिस्ट को मिलता है, हम लोग देख नहीं पाते क्योंकि बैक्टीरियल इंटरेक्शन विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं दिखेगा। एनीवे, तो
तो जरूरत क्या था कि मल्टीसेलुलर बनने का? सबसे पहले जरूरत था यूकारियोटिक बनने का। क्यों जरूरत था आप लोग सब ऊपर क्यों देख रहे हो? पक्षी आया है इसीलिए। पक्षी आया है, पक्षीराज नहीं आएगा, वो फिक्शनल था, डरो मत। अक्षय कुमार आ सकता है। अच्छा अभी अगर अक्षय कुमार if he walks in here, you all will go and forget me. Oh, this class is more interesting than Akshay Kumar. Yes. I will kill all of you. Akshay Kumar is the most important person in my life. Sir, both, sir. Oh, both. I'll kick you out of the tuition. How can anyone ignore Akshay Kumar? Huh? You can? I don't know. What you like, Kartik Aaryan? Kartik Aaryan. Then what? Abhishek Datta. Okay. He is thinking maybe Devanjan. Oh yes. Okay, jokes apart. कहा था मैं? सबसे पहले नीड क्या हुआ था पता है? सबसे पहले नीड हुआ था कि प्रोकारियोट नहीं रहना है। अपने डीएनए को इतना इंपॉर्टेंस मिला है कि डीएनए से ही सारे एंजाइम्स और प्रोटीन्स बन रहे हैं, जिससे लाइफ कंट्रोल हो रहा है। राइट और रॉन्ग? सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कंट्रोल हो रहा है। राइट और रॉन्ग? कहाँ ग्रो करना है, कैसे ग्रो करना है, फोटोसिंथेटिक होना है कि हेटरोट्रॉफिक होना है, ये सारे डीएनए से कंट्रोल होते हैं। यस और नो? तो डीएनए को प्रोटेक्ट करो, तो उसके अराउंड में मेम्ब्रेन बना दिया। सबसे पहले बन गया क्या? यूकारियोट। तो बना यूकारियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इनको कहते हैं प्रोटिस्टा। क्या कहते हैं? प्रोटिस्टा। जैसे एग्जांपल प्रोटोजोआ, ठीक है, एमीबा, पैरामोशियम, ये सब प्रोटोजोआस जो है ना, ये प्लाज्मोडियम, ठीक है। इनमें भी सर इनमें भी क्या सारे हेटरोट्रॉपिक थे? नहीं, इनमें भी हेटरोट्रॉपिक भी होते थे, और क्या बोलते हैं उसको, हेटरोट्रॉपिक भी होते थे और फोटोट्रॉपिक मतलब फोटोसिंथेटिक भी होते थे, लेकिन यूनिसेलुलर होते थे और यूकारियोटिक होते थे मतलब होते हैं। सबसे पहले क्या मिला? प्रोकारियोटिक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डीएनए कवर्ड नहीं था, उससे बदल के क्या बना? डीएनए को कवर कर लिया, यूनिसेलुलर ही रहा, क्या बन गया? यूकारियोटिक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो मोनेरा से क्या बना? प्रोटिस्टा। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? मोनेरा किनको कहते हैं? बैक्टीरियास को। यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया मिला के मोनेरा कहते हैं। मोनेरा के पास डीएनए कवर्ड है नहीं। तो सबसे पहला काम क्या किया? डीएनए को कवर किया, डीएनए को कवर कर दिया, न्यूक्लियस बन गया। क्या बन गया वो? यूकारियोट। अभी भी यूनिसेलुलर है, यूकारियोटिक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बना। क्या कहते हैं इन लोगों को? प्रोटिस्टा। कौन आते हैं इनके अंदर? एमीबा, पैरामोशियम, प्लाज्मोडियम, जितने भी प्रोटोजोआज है सारे। फिर सर जैसे बैक्टीरिया अपना फूड चेन बना लिया था, उनका खुद का आप बोल सकते हो कि एक फूड चेन था, कोई फोटोट्रॉपिक था, कोई हेटरोट्रॉपिक था। तो क्या ये जो यूकारियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये भी सेम फूड चेन में रहने लगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये जो यूकारियोटिक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, ये भी सेम हैबिटेट में, सेम फूड चेन में प्रोकारियोट के साथ रहने लगा। एंड दिस चेंज इज नोन एज एवोल्यूशन। द प्रिमिटिव वन is also in the same habitat. The modern one formed after evolution is also in the same habitat. This is how evolution has occurred. This is the first step of evolution. Did you understand what I meant? सर ये होने के लिए क्या डीएनए में चेंज होना पड़ता है? हाँ, डीएनए में थोड़ा चेंज आना पड़ता है और ये नेचुरल है। डीएनए में थुड़की सा चेंज आते आते एवोल्यूशन होता है अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट ऑफ द अर्थ। उसके बाद कौन बना? उसके बाद जो फोटोसिंथेटिक वाले थे ना यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स, वो एक साथ हो गए। अब देवांजन का क्वेश्चन आता है कि मल्टीसेलुलर बनने की जरूरत क्या थी? अकेला जितना काम करेगा, एक साथ मिलके एक ही काम करेगा, तो काम का अमाउंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ये सर नो? इसमें एक कॉम्प्लेक्स चीज है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बोल के, जो क्लास 11th के लिए बच्चों के लिए ठीक होता है। अगर किसी को जानना है इस वीडियो के थ्रू, तो मैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है कि सर ये वॉल्यूम बाय रेशियो का भी
वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया का रीजन भी बता दीजिए, तो मैं बाद में उसके कमेंट के रिप्लाई में बता दूंगा, लेकिन यहाँ इस क्लास में नहीं बताऊंगा। जस्ट इस क्लास में क्लास 9 के लिए इतना जानो कि अकेला काम करने से बेटर है बहुत सारे मिलकर कर ले, तो काम का अमाउंट बढ़ेगा, ज्यादा सस्टेन करोगे, एनवायरनमेंट में ज्यादा टिक पाओगे, एडेप्टेबिलिटी ज्यादा होगा। यस और नो? Am I being able to make myself clear? Yes or no? Yes, sir. तो जितने भी फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे ना, वो सारे एक साथ आ गए। क्या बना? एल्गी, मल्टीसेलुलर एल्गी। सर एल्गी हमेशा मल्टीसेलुलर ही होता है, एक दो यूनिसेलुलर एग्जांपल है। अच्छा, आ गया एल्गी। और जो हेट्रोट्रॉफिक वाले थे यूकैरियोटिक, वो एक साथ आ गए, मल्टीसेलुलर बने। बना क्या? फंजाई या फंगी जो कहते हैं। तो क्या सीखा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एल्गी। एल्गी से फिर और सर एवोल्यूशन यहीं पे रुक सकता था? नहीं। एल्गी ब्रायोफाइटा बना, ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा बना, टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म बना, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म बना। देवा सर ये सब क्या सब नाम बता रहे हो? ये सब नाम सीखेंगे इस वीडियो में नहीं, बस इतना बताना चाहता हूं कि इंप्रूवमेंट होते होते एंजियोस्पर्म तक आया, जो गाछ आप देख रहे हो, which gives fruits, grows, have vessels like xylem and phloem, can pick up water from the soil, can do photosynthesis and move the food all around the plant body. Higher plants, angiosperms, forms flowers, does reproduction very well. Is this clear to you? Is this understood? Sir, ये तो plant का, तो इसका मतलब इसके पीछे था जिम्नोस्पर्म, उसके पीछे था टेरिडोफाइटा, उसके पीछे था ब्रायोफाइटा। हाँ, एल्गी को कहते हैं थैलोफाइटा। ये तो हो गया प्लांट के लाइन पे, राइट और रॉन्ग? एनिमल्स के लाइन में भी हुआ। सर कैसे हुआ? सबसे पहले मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो फॉर्म हुआ वो था स्पॉन्जेस। याद रहेगा क्या था? स्पॉन्जेस। स्पॉन्ज एनिमल है, सी में वाटर में फॉर्म हुआ। स्पॉन्ज के बाद फॉर्म हुआ हाइड्रा वगैरह, उनको कहते हैं निडारिया, ठीक है। उनके बाद नेमाटोडा फॉर्म हुआ, एस्किएलमिंथिस, प्लैटिएलमिंथिस फॉर्म हुआ। सर फिर से क्या सब नाम बता रहे हो? इनके भी कैरेक्टरिस्टिक्स सीखेंगे तब पता चलेगा कि कैसे धीरे धीरे मल्टीसेलुलर बनते बनते इन लोगों के पास टिश्यूज बना और ऑर्गन्स बना। अर्थवर्म फॉर्म हुआ, स्नेल फॉर्म हुआ, स्पाइडर्स फॉर्म हुए, कॉकरोचेस फॉर्म हुए। पता है कॉकरोचेस को सबसे प्रिमिटिव कहा जाता है, राइट और रॉन्ग? सबसे प्रिमिटिव कहा जाता है, मतलब आर्थ्रोपोडा में कॉकरोचेस फॉर्म हुए, मॉस्क्यूटोस फॉर्म हुए। तो ये लोग यूनिसेलुलर है क्या? नहीं। मल्टीसेलुलर है। प्रोकैरियोटिक है क्या? नहीं। यूकैरियोटिक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ऑर्गेनिजम्स आए जिसके पास वर्टिब्रेटा आया, मतलब बैकबोन आया। और उसके बाद कौन आए? फिशेस आए, एम्फीबियंस आए, रेप्टाइल्स आए, बर्ड्स आए और मैमल्स आए। मैमल्स में डायरेक्ट ह्यूमन आ गया था क्या? नहीं, उनमें भी थोड़े थोड़े एवोल्यूशन हुआ। ये जो चेंजिंग प्रोसेस होते रहा इसको एवोल्यूशन कहते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आया। बट लाइफ कैन बी डिफाइंड फॉर ऑल दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स in only one way, that all of them through the line of evolution does 4 basic life processes: nutrition, respiration, excretion and reproduction, that is continuity of life. And all these life processes are nothing but chemical reactions that occurs where? Inside the cells. If it is unicellular, it is occurring inside one cell doing all the 4 processes. If it is multicellular, it has special organs, but that's life. Is this clear to you? Is this understood? One German botanist and one German zoologist first found out, I forgot, Mithia Sheldon and Schwann and Sheldon. These two guys. I'm a scientist, I shouldn't say them guys. I am a guy in front of them. Okay. These two people, okay, Sheldon and Schwann, they first found out that plants are made up of cells, animals are made up of cells. So they combined and said plants and animals are both made up of cells. Then Rudolf Virchow came and said cells can only be formed from pre-existing